Hello, my dear friends. In previous lecture, we discussed regarding the representation of atom with atomic number, atomic mass, how many neutrons, protons and electrons are present either in neutral atom or in charged atom. And I also explained you electrons are not only revolving around the nucleus in orbit, like all planets are revolving around sun, but electrons are also residing in their respective houses, and these houses are different, having different shape and different capacity. And these four houses are S, P, D and F. I repeat again, S, P, D and F. I have given you one memory aid by which you can write the increasing order of energies of orbitals. So this I have written here, the increasing order. Another memory aid also I have to write direct this increasing order, that I will give you in a classroom teaching learning lecture. Okay. Now you have to write this increasing order by using one diagram I have given you in a previous lecture, and based on that lecture the order is like this. This order is important, so memorize it. If you are not able to memorize, then write it in a rough page. Another thing I discussed with you, this s orbital means the house of electron has a capacity of only 2 electron. P orbital has capacity of 6 electron, D orbital has a capacity of 10 electrons and F orbital has a capacity of 14 electron. I am explaining you the basic electronic configuration. Some other concepts, sub-concepts are also there in it. Types of s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Okay, but before entering in the types of these orbitals, क्योंकि जो रो हाउस होते हैं तो उसमें भी टाइप आते हैं, बंगलोज होते हैं तो उसमें भी टाइप्स आते हैं, तो हाउसेस आर ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही सीखेंगे। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, और हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं KLMNO लाइक दैट, KLMN, दोनों में से कोई एक का यूज़ करना है। हायर सेकेंडरी में वी आर नॉट यूजिंग this KLMNO, we are using the numbers 1 2 3 4 5 6. These numbers are called orbit around the nucleus in which electrons are revolving, or it is also called in higher secondary the principal quantum number, the area of electron. Okay. और एक बात आपको इसमें समझनी है कि अगर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट, then in first orbit only s orbital is present. In second orbit then only 2 orbital s and p present. Third orbit then 3 s, p and d present. Fourth orbit then s, p, d and f present. Fifth orbit then s, p, d, f and g orbital present. Sixth then s, p, d, f, g, h present. Okay. इस तरह से इसको अल्फ़ाबेट सेकंड लेटर का सिंबल दिया गया है हाउस को। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिटल ओनली वन, दैट इज एस, फर्स्ट ओनली एस। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट एस एंड पी, थर्ड ऑर्बिट एस पी डी, फोर्थ ऑर्बिट एस पी डी एफ, फिफ्थ ऑर्बिट देन एस पी डी एफ जी। अगर ऑर्बिट 6 है तो और एक ऐड होगी एच।
तो हम लोगों को ये 7p तक ही जाना है। 7 मतलब कि ये 5th 6th और 7th ऑर्बिट, ठीक है। ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सी if we represent the orbital of first energy level means the first orbit, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इसमें से ये एस है तो वो एक ऑर्बिटल है, उसका दूसरा नाम सब शेल भी बोलते हैं। शेल मतलब ऑर्बिट, सब शेल मतलब ऑर्बिटल। और यहां पे हम जो लिखते हैं राइट साइड सुपरस्क्रिप्ट में, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। और ये जो नंबर 1 यहाँ पे लिखा है उसकी ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट है। यहाँ पे 2 आता है तो ये सेकंड नंबर की ऑर्बिट है। यहाँ पे 3 आता है तो ये थर्ड नंबर, 4th आता है तो 4 नंबर इलेक्ट्रॉन का आपको पता चलेगा कि वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और इससे ऑर्बिटल से आपको पता चलता है कि वो कौन से हाउस में है। और यहाँ से आपको पता चलता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मानो कि मैंने लिखा है कि 2p6, तो ये 6 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। p इज द ऑर्बिटल और उसको सबसेल बोलते हैं। ये नंबर 2 इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इट इज अ ऑर्बिट नंबर। नाउ देयर इज अ रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स always fill up in an increasing order. Electron always enter first in a lower energy orbitals and then enter into higher energy orbitals. So electron first you have to enter in a lower energy level and then into higher energy level orbital. You know the 1 to 30 elements, so let us start filling electron of 1 to 10. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine. As you know that hydrogen contain only 1 electron, तो ये 1s, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक डाल दो 1s1। आप सेकेंडरी लेवल पे ऐसे ब्रैकेट करके दिखाते थे लेकिन ऑर्बिटल नहीं दिखाते थे। आप ऐसे लिखते थे 1 2, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 लाइक दैट। हियर मैंने लिखा है 2 5 2 8 लाइक दैट। इज नॉट अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ पे हीलियम, उसका पता है कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है उसका एटॉमिक नंबर इज 2, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2। चलिए अब नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो हाउ टू फिल, आप याद रखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जाना है ये 1s, इसके बाद 2s, इसके बाद 2p। बाद में आपको याद में ध्यान रखना है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, 2 6 10 and 14। रिमेंबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आई हैव, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s2 कैपेसिटी ओवर, 2s2 कैपेसिटी ओवर, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फिल्ड। How many remaining? 3 remaining. 3। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 6 की कैपेसिटी है तो 6 ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास है ही 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ जितना फिल होता है पहले ये कंप्लीट करो और बाद में आप रेंडमली फिल नहीं कर सकते हो, इसी ऑर्डर में जाना है। तो ये ऑर्डर साइड में लिख के आपको रखना है। देखिए 1s2 2s2 2p3। सेकेंडरी में आप इसको लिखते थे, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखते थे। ये सेकंड एनर्जी लेवल है 2 2 मीन्स सेकंड ऑर्बिट, तो 2 3 + 2 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 5 लिखते थे आप, ठीक है। इसको आप इनर्ट कोर का यूज करके, जैसे कि हीलियम में कंप्लीटली फिल्ड है 1s2, तो एक सेकंड मेथड है, ओके, कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आप हीलियम 2s2 2p3।
हीलियम का यहाँ 2 कंप्लीटेड, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको लिखने की 1s2 लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह पे आप इनर्ट गैस लिख सकते हो. IUPAC recommended if electronic configuration is lengthy then write down in bracket the inert gases. So that is completed. तो उसके बाद बचता है क्या 2s2 2p3, तो वो यहाँ पे लिख दो. Either write down by this method or by this method you can write. Okay. अब देखिए नियोन का हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ऑर्डर में चले जाइए 10 इलेक्ट्रॉन्स. आप याद रखिएगा इसकी कैपेसिटी 2, 1s2 2s2 2p6 हो गए कंप्लीट 10. अब आगे नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पे नियोन 10 1s2 ये फर्स्ट ऑर्बिटल 2s2 2p6 सेकंड ऑर्बिटल, उस सेकंड ऑर्बिट उसमें 2 ऑर्बिटल है s एंड p. तो सेकेंडरी में हम लिखते थे 2 8, तो ये इनकम्प्लीट है, सही ये है. तो बाय यूजिंग दिस 1 2 एंड 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स हाइड्रोजन, helium, nitrogen and neon. Write down remaining 6 elements electronic configuration yourself and submit it to me. चलिए अब और 11 to 20 एलिमेंट्स में चलते हैं. Write down electronic configuration of elements having atomic number 11 to 20. Recall the elements you know very well: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. ओरली आना चाहिए माय फ्रेंड्स. ठीक है, अब बैठ के 1 to 30 प्रिपेयर कर लो एटॉमिक नंबर के साथ. चलिए इसमें से मैं 3-4 एग्जाम्पल ले लेता हूँ 11 to 20 में. चलिए सोडियम उठाते हैं. Atomic number 11. I have to fill 11 electrons. Now observe the increasing order of energy level. आपको 11 ही फिल करने, तो आप देखिए 1s2 2s2 2p6 कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, तो आगे चलना है 3s1. अब आप क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ 3s2 क्यों नहीं है, तो 11 टोटल हो जाता है. देखिए 6 + 2 8, 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11. इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ठीक है. अब आप ऑर्बिट के हिसाब से काउंट करें तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये 2s2 2p6 सेकंड ऑर्बिट है, ये 3s1 थर्ड ऑर्बिट है. सेकेंडरी में आप लिखते थे 281. वो ऐसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 6 + 2 8 एंड यहाँ पे 1 281. और यहाँ पे देखिए नियोन. According to the recommendation of IUPAC, in neon, all orbitals are completely filled. ऐसा नहीं है. आप नाइट्रोजन में देखिए तो ये completely filled है, P में अभी 3 जगह खाली है. लेकिन IUPAC ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि जो एटम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सब ऑर्बिटल completely filled हो जाती है, उस एलिमेंट को आप दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यूज ले सकते हैं यूज में, उसको ब्रैकेट में लिख के. तो आइए अब मैं फिर से सोडियम आपको समझाता हूँ दूसरी मेथड से. ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो आप ब्रैकेट में नियोन लिख लो तो इतना कंप्लीट हो गया. और बाकी का है जो यहाँ पे लिख दो 3s1. सो नियोन कंप्लीटेड, मतलब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है. 3s जब पहले आप प्रैक्टिस करते हो दोनों लिखें, ठीक है. डायरेक्ट आप इनर्ट कोर वाला नहीं लिख सकते हो, ये मैं जो समझा रहा हूँ और करके, ठीक है. पहले आप पूरा लिखो, उसके बाद जो इनर्ट कोर, जैसे मैंने यहाँ पे ये 10 वाला निकाल दिया, 6 + 2 8 8 + 2 10, उसकी जगह पे डाल दिया नियोन. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड, देन 1 इज रिमेनिंग, तो दिस इज 3s1. आप ऐसे भी लिख सकते हो. चलिए अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं 16 सल्फर. एनर्जी ऑर्डर पास में रखिए और फिल करते जाइए. वेरी इजी, इट इज अ वन टाइप ऑफ गेम. आर यू एंजॉइंग? वेरी गुड. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. अब टोटल लगाइए तो हो गया 16. 2 + 2 4 + 6 10 +
12 + 4 16, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सेकंड ऑर्बिट में, ये थर्ड ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, तो आप सेकेंडरी में लिखते थे 286, तो ये हो गया 2, ये 2 + 6 8 और 2 + 4 6, ठीक है। इसमें भी आप इनर्ट कोर का यूज कर सकते हो। ये 10 कंप्लीटेड यहाँ तक, तो उसकी जगह पे नियोन डाल दो, बाकी बचा वो बाहर लिख लो 3s2 3p4, ये बाहर का है थर्ड। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। देखिए कैल्शियम का, देखो आप, वेरी इजी, एनर्जी ऑर्डर आपके पास में रखो, या तो ओरली या तो लिखा हुआ, ठीक है। देखिए 20 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करने हैं, और वही एनर्जी ऑर्डर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 20 फिल करने हैं। अब देखिए इसको 2 + 2, यहाँ 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 हो गया 20, ओके। ये कैल्शियम 20 फिल्ड, ठीक है। तो ये 18 जो है वो आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और आप आर्गोन को देखो 18 नंबर का उसका एटॉमिक नंबर है। ऑल ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, 2 2 6 2 6, आगे नहीं जाता है। तो जिसमें कोई इनकम्प्लीट नहीं रहता है, पूरा फिल हो जाता है, वो आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक ठीक है। चलिए देखते हैं आर्गोन 18, तो यहाँ पे ये यहाँ तक का 18 कंप्लीटेड, ये, और बाकी बचता है 4s2। तो आप इसकी जगह पे आर्गोन लिख सकते हो N4s2। ये थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए ये मेथड है यूपीएससी ने, क्योंकि आप 100 का लिखोगे तो कितना लंबा होगा, तो आप उसमें इनर्ट कोर लिख सकते हो। ये आर्गोन नियोन, इसमें इनर्ट गैस का ही यूज करना है, हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टोन एंड जेनोन, क्योंकि उसमें ही कंप्लीटली फील्ड आता है। ये इतना करने के बाद समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इन सेकेंडरी लेवल आप लिखते थे ऐसे, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो उसमें फर्स्ट में 2, तो 2 8 8 2 2 8, यहाँ पे 2, ये 8, ये 8 2 2 8 8 2, आप ऐसे लिखते थे, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब जो है 2 8 8 2 ये होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया कितना, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम एंड आर्गोन, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी का जो है 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी अभी 6 एलिमेंट यहाँ पे बाकी है, तो आप अपने आप करिएगा। दोनों टाइप लिखना, ये फुल, इसको बोलते हैं फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड इसको बोलते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय यूजिंग इनर्ट गैस। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर, जो तीसरा सेट है 10 एलिमेंट 21 to 30। लेट अस रिकॉल these elements: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, सत्यवक्रम, फैकोनी, कॉपर, जिंक, ठीक है। चलिए 3 इसमें मैं समझाता हूँ, उसके बाद बाकी के 7 जो है वो आपको अपने आप लिखने हैं। आर्गोन का ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे काम आ सकता है। चलिए स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 21। ऊपर वाला एनर्जी ऑर्डर ले लो और फिलअप करते जाओ, जितनी कैपेसिटी है उतना, कैपेसिटी के बाद आगे चले जाओ, ठीक है। तो आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब इसका टोटल लगाओ ऊपर वाले का, इसका इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 21। अब दिस वन इज द, मैंने यहाँ लाइन से दिखाया है आपको, अगर इसके नीचे एक लाइन है तो फर्स्ट ऑर्बिट 2 लाइन, सेकंड ऑर्बिट 3 लाइन, 3 ऑर्बिट एंड 4 लाइन फोर्थ ऑर्बिट, ओके। तो इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट ये वाली, तो 2, ये सेकंड ऑर्बिट 8,
थर्ड ऑर्बिट यहाँ पे और यहाँ पे 9 एंड ये फोर्थ ऑर्बिट 2। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी लेवल मेथड 2 8 9 2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक 18 कंप्लीटेड, तो 18 की जगह पे आप ये आर्गोन लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे आर्गोन लिखा। बाकी बचता है वो लिख लो 4s2 3d1। तो ये शॉर्ट मेथड है, दिस वन इज द शॉर्ट मेथड, आपको दोनों लिखना है। ठीक है, अब एक नया IUPAC ने रिकमेंड दिया कि ये अकॉर्डिंग टू द orbit number or principal quantum number we can predict either the electron is near to nucleus or far away from nucleus। तो यहाँ 21 to 30 एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ के 4 3 आ रहा है। So these 4s and 3d written according to the energy level order as you prepared। तो दूसरा एक रिकमेंडेशन दिया कि आपको अगर इस ये जो बाकी बचती है आफ्टर इनर्ट कोर, इसको एनर्जी लेवल के ऑर्डर में नहीं लिखना है, तो यू कैन राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल। इसका मतलब यह हुआ कि 3d आगे आ जाता है, 4s पीछे रह जाता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि दिस one is electronic configuration according to the energy level of orbitals, and this one is the electronic configuration according to the energy level of means the number of principal quantum number। पहले 3 उसके बाद 4, दोनों में से 2 सही। तो आप 21 में से 30 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 3 टाइम्स लिखना है। पहली बार पूरा ये कंप्लीट है, दूसरी बार इनर्ट कोर का यूज करके सभी में आर्गोन ही आएगा। ठीक है, 1 to 10 हाइड्रोजन को छोड़ के इनर्ट कोर सभी हीलियम आएंगे। 11 to 20 उसमें इनर्ट कोर अगर आपको लिखना है तो नियोन आएगा 10, और 21 to 30 इनर्ट कोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ब्रैकेट में आएगा आर्गोन सभी में। ये मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कौन सा इनर्ट गैस अंदर आएगा आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, अब देखिए मैं मैंगनीज, लेट अस डिस्कस अबाउट द मैंगनीज। इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d5। अब 18 completed ऑफ आर्गोन, यहां से लेके यहां तक 18 कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे आप आर्गोन लिख सकते हैं। बाकी का जो बचा है 4s2 3d5 ऐसे लिख सकते हैं, 4s2 3d5। और एक मेथड है जिसमें आप अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये 3 है वो पहले आ जाती है, 4th ऑर्बिट बाद में आती है, तो ये 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूरत पड़ती है। ये पूरा तो हम बहुत कम यूज करते हैं, इसका और इसका बहुत यूज करते हैं। चलिए लास्ट एलिमेंट, उसके बाद बाकी के 7 एलिमेंट्स यू हैव टू राइट योर सेल्फ। जिंक 30, एनर्जी लेवल ऑर्डर में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिलअप कर दिए, यहाँ से वो मेथड बंद हो जाती है। ये जो ये है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं अब, क्योंकि 21 to 30 हायर सेकेंडरी में ही आते हैं, तो बाद में ये मेथड हम लोग निकाल देते हैं। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे जिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए। ठीक है, ये 18 कंप्लीटेड यहाँ तक का, तो उसकी जगह पे आर्गोन लिख लिया है 4s2 3d10 ये, और दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 फर्स्ट एंड देन 4। ये जो ऑर्डर है दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स 4s2 3d10, जो आगे मैंने पहले दे दिया है। अब बाकी का जो है वो राइट रिमेनिंग एलिमेंट्स, मैंने तो 3 ही बनाए, स्कैंडियम मैंगनीज एंड जिंक, बाकी यहाँ 7 बाकी रहता है। आप लिख के
सबमिट करिए, बहुत ही ईजी है। और अगर आपको बहुत इसमें इंटरेस्ट आता है, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, then I will send you the total 112 elements electronic configuration with answer. First, try to write yourself and then check it in table. See, electronic configurations are most important to study the physical and chemical properties and periodic properties in chemistry. In each and every section of chemistry, we have to write first electronic configuration. Okay, reactions are nothing but donation and acceptance of electrons from one element to another element. Okay, my friends, this is the all about इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें थोड़ा आगे जाना है, हालांकि वो बिल्कुल आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ये इतना आप समझ जाएंगे तो। अब इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने, ये पी जो है, तो पी के भी टाइप्स आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट। पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।